जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल, वार्म वेलकम टू यू। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के ग्रेस अनुकंपा से मैं आप सबसे कनेक्ट हो रहा हूं और सत्संग कर रहा हूं। मेनी मेनी थैंक्स टू Dirija Bhatt auntie for this opportunity, this wonderful opportunity. जय गुरु जी। कुछ संगत ने मेरे सत्संग जरूर सुने होंगे, ज्यादातर यूट्यूब पर न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी में रिकॉर्डेड किए हैं। गुरु जी सत्संग बाय वीरेंद्र काजी। Now, what about the current times? We have witnessed and are still witnessing the havoc, the tragedy, unexpected onslaught of the nature. In fact, this havoc has shattered our confidence. Our all planning has failed. Our goals are nowhere. Now, what we do in this, we feel a much greater need to connect to divine. And what is this? We find Guruji as a superpower. Some call Guruji Shiv Avatar, Guruji God, Guruji superpower. Here, in my interaction with most of the Sangat, since 2-3 years, Guruji has conveyed a very clear message. Time, Punjabi Mada, time bura hone wala hai. Bad times are coming. Things will be, Kaljug will show its prabhav. And Guruji, please remember, Guruji is concerned about his bhaktas. Guruji is concerned about his bhaktas, and Guruji has said, for saving his bhaktas, he has left the physical form. Guruji has left the physical form. And what has happened because of he has left the physical form? So Guruji's grace has spread all over the world. Every corner, remote corner, in US, every country, you have Guruji satsang, private satsangs. People are connecting to Guruji. People are connected to Guruji. People are experiencing miracles of Guruji. It is just like, what I feel, that Lord Shiva is manifesting everywhere, is blessing people. This is an opportunity for us. So let me put it in a little poetic form. So Guruji's grace क्या है? Guruji grace शिव का अवतार है. This is incarnation of Shiva. शिव रूप है गुरुजी, और हर जगह फैला हुआ है. कहते हैं कि शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गट वासी है, स्वयं ही गट गट वासी है. Now what is the guidance is that अरे जीवन में ही तुम पहचानो, मर के क्या पहचानोगे, चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो, खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है अविनाशी है, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल. जय गुरु जी.
मेरी जो प्यारी संगत है, what I will request you, मैं आपका फोकस गुरुजी की तरफ करना चाहता हूं। काइंडली गुरुजी की तरफ ध्यान कर दीजिए। एस्पेशली मैं आपका फोकस गुरुजी का दर्शन, गुरुजी के चरणों की तरफ डालना चाहता हूं कि whenever we start a सत्संग, वो इनवाइट गुरुजी एंड गुरुजी चरण आर देयर। गद्दी होती है, गुरुजी के चरण होते हैं। आज मैं सोच रहा हूं आप ध्यान करके गुरुजी की चरणों की तरफ फोकस कीजिए। उससे क्या होता है, गुरुजी के चरणों के प्रकाश से, गुरुजी के चरणों के प्रकाश से हमारा हृदय रूपी कमल खिल जाएगा। The rays from Guruji's feet will make the lotus of our heart bloom. Make the lotus of our heart bloom. उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? That will bless us. That will give us energy. That will make us dance with the joy. And हम आनंदमय हो जाएंगे। कहते हैं जा तेरा दिल गम से हो खाली, जय गुरुजी। We will become blessed by focusing at the चरण of गुरुजी। आप सब संगत will be aware of it कि गुरुजी हमें हमेशा फोकस करते थे। गुरुजी हमेशा फोकस करते थे कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। हमेशा that was the focus of गुरुजी। आप में से किसी ने जो शिव पुराण पढ़ा होगा, उसमें हमेशा भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, लोग परेशान होते हैं, और मैं ईश्वरी रूप लेता हूं, अवतारी रूप लेता हूं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्थ नोटिंग गाइडेंस है। ये इज एसेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। नॉट ओनली शिव पुराण से इसकी मैं भगवान शिव says that I come in the human form with maha mystics and महापुरुषों से to enlighten people. ये this is not only शिव पुराण. If you see the essence of Bhagavad Gita, लेकिन सेकंड अध्याय भगवत गीता which is very popular, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत, धर्म की हानि होती है, मैं जग का कल्याण करने के लिए मनुष्य रूपी मैं प्रकट हो जाता हूं। And I am from Kashmir. We have a little Urdu culture. So I always translate for common people. Yada yada hi dharmasya, जिसको मन में याद रखिए, in Urdu. It's a wonderful poetry. इसका मैं अनुवाद करूंगा. There's a Urdu word called तनज़ुल. तनज़ुल means decline. कहते हैं तनज़ुल पर जिस वक्त आता है धर्म, तनज़ुल पर जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गरम, अधर्म आके करता है बाजार गरम। अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। जय गुरुजी। So you can understand the Avatari Purusha of Guruji. And we are very lucky to be under the grace of a Sadguru, जो हमें accept करता है as we are without any preconditions। ऐसा कमाल है कि हमें ऐसा गुरु मिला है। ये गुरु हमारी एक्चुअली गुरु जी हमारी लेवल पर आता है। He comes down to level like a friend, makes us comfortable। क्यों? सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए। गुरु जी gives us simple ways, simple techniques, simple, I would say, basic of human values, without any bothersome rituals. Don't go in unnecessary things, and so that we can evolve. ये कल्याण कमाल है गुरु जी का। But ऐसे we must seek Guruji's grace, and we must remember, please do not forsake your karma। हमें कभी कर्म अपने भूलने नहीं चाहिए कि हम करेंगे तो गुरुजी बचा देगा, बल्कि गुरुजी हमारे नो डाउट हमारे कर्म काटते हैं। गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं कैसे? like we are in the rain, walking in rain and carrying an umbrella। तो गुरुजी
मतलब वो बारिश से बचाते हैं, हालांकि हल्की सी छींटें पड़ती है. सो आई विल से 90% कर्म काटते हैं गुरुजी हमारे, 10% हमें भोगने हैं. सो वी मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ our karma journey also. And second is that very important is we must have full faith in Guruji. We must have full faith in Guruji. You know that चलो देखें अब गुरुजी में क्या है. बहुत ऐसे सत्संग भी बहुत है इसमें हमारे. रिसेंटली मेरे अपने फैमिली में ऐसा देखा मैंने कि गुरुजी क्या है, कैसे करते हैं. You know, with no ifs and buts. No ifs and buts. You know, we should have total faith in Guruji. Ifs and buts में क्या, we reach nowhere. I say that in ifs and buts, your nil achievement is guaranteed. You will not reach anywhere. You will not reach anywhere. Nil achievement is guaranteed if you are in ifs and buts. So have total faith in Guruji. And of course, Guruji is always that, which I again emphasized, lead a simple, noble life, no rituals, no unnecessarily wasting your time on unnecessarily karma kand, no jyotish totkas and other things. And of course, which is very important is that I'll always tell people, have direct connection with Guruji. Ab jahan ho, connect to Guruji directly. In fact, you don't need anything else. Guruji और आप, बाकी कुछ और नहीं चाहिए. So that's how we should connect ourselves to Guruji. Actually, अभी आपने देखा होगा गुरुजी हमारे डिवोटीज के, मैं कहता हूं छोटे काम भी करते हैं, बड़े काम भी करते हैं. पर्पस इससे हमारे गुरुजी की shows your full presence. Guruji shows his full presence to us. जो हमारे तकलीफ को दूर करते हैं, छोटे काम भी करते हैं, बड़े काम भी करते हैं. You know, we have every day we see lot of miracles. सब सत्संग लोग बुलाते हैं. मतलब किसी को बोलता कि मेरा बिजनेस में था, I was in extreme distress, then by going to Guruji I got a U-turn and my fortune started coming, manifesting. Fortune started manifesting. कोई बोलता टेस्ट मेरे क्लियर हो गए, which is I have संगत, it's very popular. बीमार था, then you know doctors are surprised, test हो गए. Many miracles happen. Even कोरोना में भी बहुत miracles सुने मैंने. बल्कि एक just before कोरोना हमारी daughter-in-law की एक friend है. She said she used to go from Noida to बड़े मंदिर जाती थी. She would take metro, छतरपुर metro से जाती थी और वहां ऑटो में वो बड़े मंदिर तक जाती थी. That was a routine, her routine. एक दिन क्या किया, she said she went to छतरपुर मंदिर जाने के लिए स्टेशन से उतरी. ऑटो वाले बोले नहीं, हम सब कोई नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज रश नहीं है दिन, आज अब रश नहीं, हम नहीं जाएंगे. बट वन मैन सेड, अच्छा मैं आपको बाहर रोड तक ड्रॉप कर सकता हूँ, बाद में आपको चलना पड़ेगा. बोला ठीक है चलो जी, मेन रोड तक ही आप ड्रॉप करो मुझे. एंड दिस चल रहा है, वो उसके साथ चल रही है. एंड ही टुक हर एग्जैक्टली टू बड़े मंदिर के गेट तक, बड़े मंदिर के गेट तक एग्जैक्टली ही टुक हर देयर. उसने कहा कि शी पेड द मनी. वो जो आपके साथ बैठे थे वो कहाँ गए? बोला कौन बैठे थे? अरे जिसका लॉकेट आपने पहना हुआ है, आपने तो लॉकर पहना हुआ, वो आप, उसी ने कहा मुझे चल चल उसको छोड़ दो मंदिर तक. तभी आपके साथ ही बैठे थे, वो कहाँ गए? दिस इज अमेजिंग मिरेकल ऑफ गुरुजी. बल्कि अब एक मेरे ही अपने क्लोज एक पर्सन है, माय वेरी क्लोज पर्सन ऑफ माइंड, बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग माय जर्नी विद गुरुजी. यू नो,
in from Jalandhar days, we were very close to Guruji. जो हमारे फ्रेंड रिश्तेदार सब आते थे, सब जाते थे. Now since we settled in Delhi, my that close relation also settled in Delhi. Ab Guruji was very friendly. He would not show himself as a guru for common people. So he was take a walk. So this man will also take a walk with him. बोला अरे गुरुजी क्या है, मॉडर्न सब गुरुजी है, ऐसा आप इतना करते हो वो करते हो, ये तो मेरे साथ वॉक करते हैं, अरे बड़ा मॉडर्न है गुरुजी, स्मार्ट, बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड शूज एंड मगर वॉक करने. एंड व्हेन he didn't believe in Guruji, and when he got in great trouble, घटना का था, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये है, छोड़ दो, सॉरी, ये है गुरुजी का स्वरूप, ICU तके के नीचे रखा है. दिस इज फ्यू डेज बैक ओनली स्टोरी मैं बताता हूँ. एंड इमीडिएटली थिंग्स स्टार्टेड इंप्रूविंग. ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई बैक इन द होम. दिस इज अ मिरेकल ऑफ गुरुजी. बल्कि मैं मोस्टली आई डू सत्संग्स इन अमेरिका. शायद 2 साल की बात ही है, 2 साल पुरानी बात है. माय सत्संग वाज इन समरसेट. सीमा सिंह आटनी के जो ऑर्गेनाइज कर रही है, मेरा सत्संग था. A young girl told me that, oh, Mr. Kazi, I have a question. I go, what is the question? He says, whenever I come to Guruji, this Somerset, this temple, I was always thinking I should get parking. I'm always worried about parking. And oh, miracle, I always get parking. Guruji gives me parking. I told him, my dear, Guruji fulfills your small desires. Guruji will also fulfill your big desires also. There's no dearth. Guruji fulfills your small desires. Guruji fulfills your big desires. And what is the purpose behind these miracles? Guruji shows his presence, and Guruji tells his graces for us. Why? To evolve to a better level of human being. And a divine person, let all of you become divine person. आप दीपक की तरह सबको. इसी तरह गुरुजी हमारी जर्नी, लाइफ जर्नी को स्मूथ बना रहे हैं. So what we should say always, गुरुजी का हमें आशीर्वाद चाहिए, गुरुजी की ग्रेस चाहिए. और गुरुजी का वेरी पॉपुलर बात, हमेशा गुरुजी बोलते थे, मांगो नहीं मनो. बिलीव इन मी, हैव फेथ इन मी, डोंट आस्क फॉर थिंग्स. टेल फ्रैंकली, हमारी बुद्धि इतनी, we don't know what we want actually. There are many satsangs, because it will take a lot of time. You know that I ask for foolish things, and Guruji knows what is good for us and at what time. There's a lovely song also, कहते हैं कि हम मूर्ख जो काम बिगाड़े, रामो काज बनाए रे. हम तो अपना काम बिगाड़ ही देंगे. वो only Ram, God will only take care of us. अच्छा, संगत जी कहते हैं, when time is ripe, Lord Shiva bestows grace. Lord Shiva bestows grace through Siddha Purushas. This is a popular, our spiritual journey starts. This is in scriptures. Actually, यही मेरी spiritual journey Jalandhar से शुरू हुई. I got a boost to my spiritual journey in Jalandhar. हमारा ट्रांसफर 1989 में Jalandhar में हुआ. You know, I was working in Steel Authority of India Limited, so there was a regional office. So I was on promotion, posted as a regional manager, sale. So it was a high profile, steel shortage होती थी वगैरह, बड़ा अच्छा था. तो क्या हुआ, मैं 2 महीने हो गए थे मेरे ऑफिस में, 1-2 महीने ही हो गए थे ऑफिस में. I get a
एन एनवलप लिखा। अब मेरा था कि ब्लेसिंग गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो एनवलप खोला, एक साइड में लॉर्ड शिवास पिक्चर थी, पीछे साइड थी गुरु नानक देव की पिक्चर थी, इतना ही था। मैंने कहा यार पता नहीं गुरुजी है तो कौन से गुरुजी है पता नहीं। मैंने कहा चलो अभी वीकेंड आता है चलो चलेंगे। वो हम रहते थे 37 ग्रीन पार्क, इट वाज हार्डली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम 300 डिफेंस कॉलोनी, वाज इन कैंटोनमेंट साइड। तो वीकेंड में हम गए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी से जुड़ गए। एंड whatever basically whatever little bit I have also little bit spiritual eyes, discerning eye, हमारा जो सत्संग मतलब हमारी जो spiritual थोड़ी सी knowledge है, I could tell you frankly, shining person, but I could find him a mystic of great order. That was my first impression. तो mystic अपने आप वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, तो वो उनकी जो वो राज रखते हैं, they won't reveal themselves, the real purpose क्या है, कितना ये मान है। तो but I found him mystic of high order. वो कहते हैं ना, वो बुल्ले शाह कहते हैं, जित पाया वेद कलंदर दा, जित पाया वेद कलंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुखमंदर दा, he resides in bliss. So we are grateful to Guruji for his extreme blessings, his spiritual direction. Besides the knowledge, what are the siddhis and rahasya things I could learn there. And हमारी क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली चार्मिंग लाइफ होगी वहां। तो वहां जो पुरानी संगत को मालूम, वहां क्या होता था, गुरुजी में बैठते थे, बहुत ही मजा आता था। एंड देन गुरुजी विल गिव फर्स्ट डिवाइन जल प्रसाद, वो थाली में छोटे छोटे कटोरी में, वो स्मॉल ग्लासेस में वो पानी आता था। देन गुरुजी अपने रुद्राक्ष में विल एनर्जाइज दैट वाटर, विल हैव अ डिवाइन फ्रेग्रेंस। फिर वो रखते थे, ऐसे दिखाते थे, फिर वो देखते थे संगत, वे वेरी कीन, अरे मेरी बारी कब आएगी, गुरुजी मुझे देंगे ये जल प्रसाद। इट वाज अ वेरी चार्मिंग थिंग। एंड गुरुजी उनका सिस्टम क्या था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुजी अन्न नहीं लेते थे, यू नॉट टेक सॉलिड फूड, लाइट फूड ओनली, दूध वगैरह वगैरह, जूस वगैरह। और गुरुजी थर्सडे फ्राइडे स्पेशली गुरुजी का इवनिंग कहीं न कहीं सत्संग होता था। गुरुजी वाज इनवाइटेड एंड इनवेरिएबली विल बी पार्ट ऑफ दैट गुरुजी's ट्रुप। एक या दो कार्य होती थी, कभी जालंधर में किसी जगह, कभी फगवाड़ा, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़। रूटीन, रोज शाम को आते थे मंदिर में, we had a lovely milk and then we'll go home. हमारे बच्चे भी छोटे थे, हमारी माताजी would take care of my kids. It was a very very charming time. और गुरुजी के हमने जालंधर में ओपन मिरेकल्स देखे, गुरुजी के जालंधर में ओपन मिरेकल्स देखे। जैसे अब हमारे घर में आते थे या क्या आते थे, गुरुजी विल जस्ट टॉक, अच्छा जी क्या हाल है, एंड देन डिवाइन, मैं जस्ट टेकिंग यू, आपको गुरुजी की जर्नी जैसे ले जाता हूं मैं, गुरुजी के टाइम की जर्नी, दैट इज माय पर्पस टुडे। तो a divine fragrance will come, a divine fragrance will come, and then मैं समझता कुछ मिरेकल होने वाला है। then Guruji would do like this, ऐसे होता था। डिवाइन प्रसाद, कभी बताशा, कभी बर्फी वगैरह, तो will be produced, and then Guruji will wash hands and that prasad will be distributed to all. ये मिरेकल होता था। एंड
एक दिन क्या हुआ, वहां एक जलंधर में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, बीडी अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल जी उनके थे बेटे, विशंबर दास अग्रवाल के। वो कहते थे मुझे, यार एक गुरुजी जबरदस्त है ये, का साहब आप सुना, आप बड़े क्लोज हैं गुरुजी से, जाते हैं वगैरह, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे घर में भी अगर गुरुजी चरण डालेंगे तो मुझे बड़ी, आई शैल बी ग्रेटफुल। तो मैंने कहा चलो, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो प्रमोद जी वो भी कंटोनमेंट में ही रहते थे, तो उनका बड़ा बंगलो था कि बुला चलेंगे। तो हम चले गए ऑन ए पर्टिकुलर डे, बल्कि हमारे साथ एक अनीता वर्मा, लिंडा अनीता वर्मा, आजकल वो टोरंटो में है, वो भी हमारे साथ थी। तो बल्कि वो had a very like a family type charming. She was Linda, she was actually Miss Femina also, and मेरा छोटा बेटा था, गुरुजी का आश्रम में स्कूल से डायरेक्टली जाता था। वो गुरुजी आपकी चाय बड़ी टेस्टी है, तो वो कभी बोले, अरे काजी का मुंडा आ गया, इसको दूध पिला दो, एंड उसको मिसेस इंडिया बोलता था मेरा बेटा। तो चलो, ये वेरी चार्मिंगली वी वेंट टू, वहां मिरेकल मैंने क्या देखा, वहां भी इमीडिएटली फ्रेगनेंस आ गई, और उसने, गुरुजी ने ऐसा नहीं किया, गुरुजी ने ऐसा किया, उस टाइम ऐसा किया, जस्ट हु कर कैसे, 6 गज लंबी सिल्क साड़ी, ब्लूइश सिल्क थी, रंग की थी। गुरुजी क्रिएटेड दैट, बस जबरदस्त मिरेकल मैंने देखा। और बोला, ले आंटी, उसको वही लिंडा वर्मा को दी, एंड शी हैज वेरी वेल प्रिजर्व्ड इट, बड़ा उसने कहा बड़ी ट्रेजर इट, ही हैज ट्रेजर्ड इट, उसके पास है वो साड़ी। ये मैंने गुरुजी का भी जबरदस्त मिरेकल देखा। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स गुरुजी के मतलब नॉर्मली क्या होता था, हम सैटरडे भी जाते थे, कभी संडे तो जाते ही जाते थे गुरुजी के मंदिर में, तो सत्संग होते थे, पीपल विल रिवील देयर मिरेकल, देन देयर बी हीलिंग्स, पान पत्ते वगैरह, सब वो सिस्टम था वहां। तो हम क्या संडे को कभी लंच करके ही जाते थे वहां पे, 2-3 घंटा बैठते थे, आते थे वापस, या कभी चलो प्रसाद, चलो गुरुजी के मंदिर में प्रसाद लेंगे, ऐसा भी करते थे, कभी वहीं जाते थे, जल्दी जाएंगे प्रसाद लेंगे फिर निकले। एक बार क्या हुआ, हमारी जो आंटी है, हम थे दोनों जाते थे, गुरुजी ने कहा कि हमारे आंटी को, ले प्रसाद, और गुरुजी का ऐसा था कमांडिंग चार्मिंग वॉइस थी गुरुजी की, ले प्रसाद। बोला, नहीं गुरुजी अभी खाना खा के आए हैं, भूख नहीं। ले प्रसाद ले। बोला, नहीं नहीं गुरुजी, भूख नहीं है बिल्कुल, खाना खा के आए हो, तुम लोग कश्मीरी हो, तुम लोग चावल खाते हो, जो चावल खाते वो चुगली करते हैं, ले प्रसाद। बोला, नहीं गुरुजी, भूख नहीं है। उसने क्या कि चम्मच से हल्का सा जल प्रसाद दिया आंटी को, ले लिया। आई विल टेल यू, विदिन 2 मिनट्स शी सेड, गुरुजी मुझे भूख बहुत लगी, मुझे खाना दे दो ना। तो ये अजीब गुरुजी का मैंने देखा, मिरेकल देखा गुरुजी का। एंड गुरुजी वाज, आई विल टेल यू फ्रैंकली, whether people are aware of it, मैंने कहा वाज अ मिस्टिक, हम पहचान नहीं सकेंगे वो, अरे गुरुजी है जी, मेरे फ्रेंड है जी, गुरुजी बहुत अच्छी बात करते हैं। ही वाज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट आल्सो। एक बार क्या हुआ, गुरुजी की लीला, हम गए फगवाड़ा की तरफ, बैठे गाड़ी में, गाड़ी जब बैठे हैं तो गुरुजी, चलो इधर से, एक फ्रॉम द मेन रोड डाइवर्टेड टू है, वो पतली गली जैसी थी, कीचड़ वाला जैसा था, अंदर चले गए, मे बी अबाउट 300 यार्ड्स, अगर कुछ, रोका गाड़ी, गुरुजी निकल गए, फ्रेंडशिप से बैठे थे, निकल गए गुरुजी, ऐसा अंदर गली में घुस के मकान में चले गए गुरुजी अकेले। पता नहीं क्या गुरुजी का क्या लीला है, बैठे वेट कर रहे हैं, ऐसे बैठे हमें अबाउट 20-25 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे हैं। गुरुजी, पता नहीं गुरुजी का ये है। एंड गुरुजी निकल गए विथ एन ओल्ड famished old poor couple, they saw off Guruji। तो मैंने उन्हें कहा कि हम गुरुजी, बहुत हमारी इच्छा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें, मगर हम वी आर नॉट एबल टू गो, कहाँ कैसे जाते, जलंधर वगैरह पे ऐसा कैसे आते, इच्छा थी, एंड गुरुजी प्रकट हो गए।
that shows, how you would care for the people. ये मेरे बात, human values. एक बार क्या हुआ, मेरे एक मित्र है लुधियाना में, उन्होंने कहा था चलो जरा गुरुजी का सत्संग हमारे घर में। मैंने कहा ठीक, हम गए लुधियाना, गुरुजी का सत्संग हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था। One man came to me, said, यार ये मेरे मोहल्ले में है, मुश्किल से यहाँ है, ही इज अ हार्ट पेशेंट। मेरे होस्ट ने कहा जरा गुरुजी को बोलो इसको कुछ कल्याण करे, बेचारा बहुत बीमार है, मुश्किल से चल के यहाँ आया। मैंने कहा गुरुजी जरा इसका कल्याण करो। गुरुजी बोला बोलो मंदिर आओ, जलंधर मंदिर आ जाओ। मैंने कहा गुरुजी मुश्किल से वो यहाँ चल के आपके पास, सी सच ए सिक पर्सन। गुरुजी बोला नहीं आ जाओ मंदिर, कल आ जाओ मंदिर, कल जलंधर आ जाओ। उसे गुरुजी ने पता नहीं क्या किया, अमृत दिया, ऐसा नहीं क्या किया, he got revived and then next day he went to जलंधर। वो अपना जो गुरुजी का पान पत्ती लेकर वो ब्लेसिंग लेने जलंधर गए। तो ये अजीब अजीब चीज मैंने देखा गुरुजी से। Coming back to Guruji's human values and Guruji's great sense of humor। अब देखिए ह्यूमर, Guruji's great sense of humor and human values। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, करीब 11 बज गए थे, 11 दिन का टाइम था, ऑफिस में बैठा हूँ मैं। जेंटलमैन केम टू मी, बिकॉज जलंधर छोटी जगह थी, ओनली 1-2 किलोमीटर में आते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बोला अब गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, चलो चलते हो। तो मैं गया गुरुजी के पास, बोला आओ काजी अंकल, तू कहता ना कि यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, तो कहता है खाली यहाँ अमीर लोग आते हैं, वो बता तो अपनी कहानी। तो वो एक्चुअली बोला सर मैं ड्राइवर हूं, चंडीगढ़ में रहता हूं, ड्राइवर हूं, मेरा बाप सब्जी बेचता है, सब्जी वाले का बेटा हूं, मैं ड्राइवर हूं। मेरा टोटल हार्ट ब्लॉकेड हुआ, फिर पीजीआई वगैरह सबने बोला क्या महंगा इलाज है, कौन तेरा इलाज करेगा। सो आई वॉज ऑलमोस्ट लेफ्ट टू डाई एंड देन गुरुजी केम टू मी, ही रिवाइव्ड मी, जो मैं जिंदा हूं बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो बोला अब मैं once in 6 months गुरुजी का आदेश है कि मैं चंडीगढ़ से आता हूं। और जो एक्चुअली क्या था गुरुजी का था, एक तो बड़े मंदिर में मेन था हॉल मंदिर, देन देयर वाज बी गुरुजी's बेडरूम, सेकंड एक था कमरा, उसको बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। वो हम पेशेंट आते थे, वही बोला ऑपरेशन थिएटर है, वो पान का पत्ता लेकर इलाज करते, चम्मच पान के पत्ते जल से। बोला मैं पान के पत्ते लेकर आया हूं, अब ये once in 6 months गुरुजी। बोला गुरुजी बोलते हैं अब ये बोलता है मेरी शादी कर लो, और मैंने बोला यार गुरुजी ने शादी नहीं की, तू कैसे शादी करेगा। तो दिस वाज गुरुजी का ब्लेसिंग आल्सो इन अ वेरी लाइटली सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो, बट a discerning people, we should realize, we should see the message of Guruji, his own life। ऐसा नहीं है कि it was not only sense of humor was just to make us comfortable, basically we should go deeperly, बल्कि मैं आपको इस पर फोकस करना चाहता हूँ। गो बैक टू शिव पुराण। इससे आप जरा देखिए गुरुजी का क्या शिव रूप था। आई वांटेड टू फोकस ऑन दैट, गुरुजी का शिव रूप। एंड इफ यू गो बैक टू शिव पुराण, which was Guruji was always emphasizing शिव पुराण पढ़ो। एंड गुरुजी का वेरी पॉपुलर था, जब गुरुजी प्रसन्न होते थे, व्हेन गुरुजी विल ब्लेस यू, 2 डायलॉग होते थे, ऐश करो या कल्याण कीता। These were actually, that means your desire is fulfilled, that means your goal, whatever goal you want, is fulfilled when Guruji के डिवाइन मुख से निकलते थे शब्द ऐश करो और कल्याण कीता। Please remember, in Shiv Puran, it's a very, very famous reading of Shiv Puran. In Shiv Puran, it's very clear, क्या लिखा है कि भगवान शिव, मेरा पर्पज ये है कि शिव जी, गुरु जी की क्या, व्हाट वाज द लेवल ऑफ गुरु जी, कैन ऑल रियलाइज। कहते लॉर्ड शिवा, हमेशा लॉर्ड शिवा डज पंचकृत, आई कॉल इट 5 ग्रेट एक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस इज अ टीचिंग ऑफ शिव पुराण। भगवान शिव 5 कृत करता है, लॉर्ड शिवा डज 5 ग्रेट एक्ट्स। नॉर्मली हमने सुना है ना, ट्रेडिशन से दैट ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा
क्रिएट करता है, पालन विष्णु करता है, संहार शिव करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी. This is a circle of life is fulfilled through. But Shiv Puran clearly explains the glory of Shiva is the in everything. Brahma is Shiva, Vishnu is Shiva, and Shiva. तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. पंचकृतिस जैसे भगवान शिव ने क्रिएशन 5 एक्ट करता है भगवान. पहला एक्ट है क्रिएशन, ये ड्यूटी ब्रह्मा को दे दी. एक्ट ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा को दी है. फिर पालन की ड्यूटी है ये विष्णु को दी है. पालन की ड्यूटी विष्णु को दी है. जो विड्रॉवल है, जब आपका सर्कल खत्म हो जाए, संहार का ड्यूटी दी है रुद्र को. संहार की ड्यूटी है रुद्र को. देन भगवान और 2 कृत करता है. शिव की और 2 लीला है. वो 2 लीला क्या है? 4th एक्ट इज कॉल्ड विलय तिरोधान, द व्हीलिंग पावर ऑफ लॉर्ड शिवा. हम कहते हैं भगवान शिव पर्दे में छुप जाता है. भगवान शिव पर्दे में क्यों छुप जाता है? बिकॉज वी आर ऑल शिवास. आप भी शिव हो, मैं भी शिव हूं, उसी का सब रूप है. भगवान शिव पर्दे में छुप जाता है, एक से अनेक, टू सी द एंजॉय द ड्युअलिटी. नहीं मैं ये हूं, ये मेरा है, वो मेरा है. ये जो इग्नोरेंस है ये भी भगवान शिव एंजॉय करता है. जैसे भगवान शिव जब पर्दे में छुप जाता है, वी बी ऑल बिकम इग्नोरेंट. वो मेरा है जी, ये मेरी प्लान है जी, वो है. वो कहते हैं भगवान शिव महेश को ड्यूटी दिया है तिरोधान, द व्हीलिंग पावर ऑफ शिवा. दिस ड्यूटी गिवन टू महेश. बट अब मेरे आपका आई वांट योर फोकस योर अटेंशन. बट लास्ट ड्यूटी इज क्रिएशन, सस्टेनेंस, dissolve, disappearance, whatever you call it, then wheeling or tirodhan. Last is anugrah, the blessing. Anugrah, the blessing. कहते हैं वो शिव अपने पास ही रखता है. That power he holds with himself. So इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का have idea कि the level of गुरुजी जो कहते हैं कल्याण कीता ऐश करो, that means you are now blessed. So this also I want my friends to realize the greatness of Guruji. जय गुरुजी. बिकॉज आज मेरा मूड है थोड़ा सा गुरुजी की चर्चा करें. बिकॉज नॉर्मल हमेशा मैं ज्ञान टेक्निक, बट एंड में थोड़ा सा मैं आई वांट यू टू फोकस अपनी साधना कैसे बेटर हो जाए, वो भी एक शॉर्ट में बताऊंगा. बट चलो मेन मेरा आज आया गुरुजी की ही लीला. 93 में सबको पता है कि 95 में गुरुजी rather partially for short time settled in Delhi in 95 in S block GK1. वहां जो गुरुजी बेसमेंट में, उसकी भी मैं कहानी करता हूँ. बट बिफोर दैट इन 93 मैंने गुरुजी का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया. गुरुजी चलो चलेंगे दिल्ली, चलेंगे. हम गुरुजी को दिल्ली लेके गए. तो हमारे साथ एक था वो मेरा भी एक क्लोज फ्रेंड, उसकी गाड़ी थी लुधियाना में, वो टोयोटा कुरेला थी, उसकी गाड़ी थी. और ड्राइवर उसी का ड्राइवर था, उसका नाम शगन. पता नहीं आते किसी संगत ने सुना होगा, शगन भी गुरुजी का भक्त है. तो उसने चलो आफ्टर द ट्रिप ही सेड नो आई वांट, काजी साहब मैं गुरुजी की सेवा में रहना चाहता हूं, मेरे मालिक से जरा रिक्वेस्ट करो, ही शुड परमिट मी. ही वाज अ वेरी गुड ड्राइवर. मैंने पहले कहा गुरुजी ये आपकी सेवा करना चाहता है. बोला चलो ठीक है करने दो सेवा इसको. फिर वो गुरुजी के कंटे सा वही चलाता था और मैंने इसको फिर गुरुजी के साथ लगा दिया था. चलो गुरुजी का इट वाज अ चार्मिंग टाइम. गुरुजी को ट्रिप टू दिल्ली, मैं गुरुजी के साथ था और वो भी फ्रेंड भी था मेरे साथ. और हम दिल्ली आ गए. हम जालंधर में थे, जालंधर से हम दिल्ली आए. वी नंबर 4 सैनिक फॉर्म, एक बड़ी कोठी थी. ज्ञान विजयेश्वर था अप्पूगर का मालिक दिल्ली में. उसके घर में हम रुके थे, गुरुजी उसके घर में रुके थे. बहुत लोग मिलने आए. देन वी हैड मेनी पीपल. आई टुक टू गुरुजी देयर, उधर मिलने गए. आई रिमेंबर उस टाइम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वाज V.N. गाडगिल. उनके पास गए तो गाडगिल साहब ने भी बहुत सम्मान किया गुरुजी को और उसे एक किताब प्रेजेंट की, जपजी साहब इन इंग्लिश. उनके पिताजी थे N. गाडगिल, नरहरि गाडगिल. ही वाज गवर्नर ऑफ पंजाब. व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ पंजाब ही ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश जपजी साहब. वो भी गुरुजी को प्रेजेंट की. फिर देयर NKP साहब, मेनी पीपल. पर एक अभी मजेदार बात है, सुनिए. गुरुजी का अपना स्टाइल और चार्म.
गुरुजी ने कहा उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव, आपको याद है उसका एक गुरु था तांत्रिक चंद्र स्वामी वाज गुरु ऑफ नरसिम्हा राव, क्योंकि उसकी गाड़ी डायरेक्ट जाती थी पीएम हाउस विदाउट दिस थिंग। वो बोला अरे काजी अंकल चल मुझे चंद्र स्वामी से मिला दो। मैंने कहा गुरुजी आप इतने सिद्ध पुरुष महापुरुष आप इस तांत्रिक से क्यों मिलेंगे? ना ना ना, डायरेक्ट जो कहा करो तुमको मिला। 2 बार बोला, फिर बोलते गुरुजी एक्चुअली आई एम रिकॉलिंग सो द चार्म ऑफ गुरुजी, मेरी गुरुजी ग्रेस का मानस, गुरुजी की ग्रेस है। बोला अरे हरकत करो तो बरकत। वो ठेठ पंजाबी में बात करते थे गुरुजी, और उनको बोलता भी था कि गुरुजी मुझे आपकी बात समझ नहीं आती है। बोला हरकत करो तो बरकत, हरकत से बरकत, चल मिला दो मुझे। बल्कि मेरी आंटी को पंजाबी, शी कैन अंडरस्टैंड पंजाबी, शी स्पीक्स आल्सो। वो मुझे कहती थी गुरुजी अरे क्या सुन रहे हो गुरुजी, ये बता रहे बात ऐसा कर रहे हैं। तो हरकत करो तो बरकत। मैंने कहा चलो गुरुजी आपका आदेश है। वो he was VVIP that time because everybody will come to the Chandra Swami, but he would respect me a lot because I'm a student of Tantra, Suksham Tantra, Kashava Agamas. It's a highly respected knowledge which you जिससे हमें इसी जन्म में enlightenment मिल सकता है। It's a Guruji's grace, इसकी practical साधना भी I do that. So because of this 2-3 seminars में he had seen me, he used to always respect me. He would talk me very nicely and respect me and of course tell me to come there. तो मैं गया, अदरवाइज मिलना भी मुश्किल था उसको, चंद्र स्वामी को उस टाइम। मैं गया चंद्र स्वामी के पास, मैंने कहा स्वामी जी मैं भी जलंधर से तो आया हूँ, तो मेरे साथ एक बड़े सिद्ध पुरुष है, उनको हम गुरुजी बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुलाकात हो। तो वो उसका तरीका स्टाइल, बोलो आप कहते हैं काजी जी तो कोई बात होगी, उनका बहुत स्वागत है, आइए आइए। तो फिर आई ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, गुरुजी को लेके गया। बड़ा उसने भी बड़ा कमरा नहीं, दूसरे कमरे में मुलाकात करेंगे, बड़ा मिठाई बड़ी अच्छी तरह से ही ऑनर्ड गुरुजी। चलो बैठे हम, और हार्डली 5 मिनट हो गए, बड़ा सीरियसली बात, चल काजी उठो। क्या है गुरुजी का लीला? मैंने कहा उठे, हम निकले। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे 3 बार बोला बड़ी मुलाकात करनी है, आप जल्दी निकल गए गुरुजी। अरे तेरे को पता नहीं, बिल्कुल ठेठ पंजाबी, इसके चेहरे पर डाउनफॉल लिखा हुआ है। अब बताओ गुरुजी आप जाने तो चेहरे पर डाउनफॉल, तेरे को नहीं पता है। निकल गए हम। एक्चुअली स्ट्रेंज थिंग हैपेंड आफ्टर दैट। राजेश पायलट वाज मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स, ही ब्रॉट अ केस अगेंस्ट हिम, ही वाज इन चार्ज ऑफ मर्डर वगैरह करके, ही वाज पुट बिहाइंड बार्स। सच अ मैन विद, क्या बोलते हैं ना, पूरा कंट्रोल, टॉप ऑनर, क्या था, ही लैंडेड इन जेल। मैंने अजीब चीज देखा। और फिर शायद आई थिंक सो क्या हुआ, अब इनको शर्म आ गई थोड़ी सी मेरे से डायरेक्ट अप्रोच करना। अलग बात है, गुरुजी के पास गए, वो भाई उनका जो था बांजा वही गुरुजी के पास कुछ माफी करो कलाम है, बचाओ उनको कुछ है के। आई थिंक आफ्टर मंथ और सो ही वाज रिलीज फ्रॉम द जेल। वो विदाउट माय नॉलेज दे वेंट सेपरेट गुरुजी की। शर्म आई होगी भाई, ऐसे काजी साहब के थ्रू जाएंगे तो ये करके। ये मैंने अजीब मिरेकल देखा गुरुजी का। एंड देन एज आई टोल्ड यू, गुरुजी '95 में आए। इट वाज अ बेसमेंट, एक था एक सरदार जी, उसका नाम था केसर सिंह। केसर सिंह की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, वर्चुअली her eyes were got damaged in the car accident, but गुरुजी के मिरेकल से she got eyesight back, बचा दिया वापस। and then उसने दी थी बेसमेंट। तो बेसमेंट में क्या था, लोग पागल जैसे हो गए लोग। और then after some time, because गुरुजी का भी थोड़ा सा सेट नहीं हुआ था उस टाइम, गुरुजी left back to Brisbane, जलंधर, and गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे। and then गुरुजी came to Delhi, एम्पायर एस्टेट में गुरुजी रहते थे। और गुरुजी के बहुत ही मिरेकल्स, कितने, कहां से शुरू करे कहां से खत्म करे, क्या क्या कहानी, वेरी दिस थिंग। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू एम्पायर एस्टेट, बल्कि चलो हमारे
यहाँ भी कल्याण कर दिया हमारे, जहां हम रहते फ्लैट में भी। बल्कि मैं गुरुजी पर लोगों को बताता हूँ, गुरुजी हमारे एक पर्टिकुलर सोफे पर बैठते थे, फुल ऑफ मिरेकल्स। बट गुरुजी का मैंने देखा, ही वुड टेक, तकलीफ अपने ऊपर भी लेते थे गुरुजी, सब कुछ करते थे, तकलीफ भी लेते थे। और इट्स अ बिग लेसन फॉर अस, यू नो। आई टेल माय फ्रेंड्स, एक आदमी ने बोला परसों एक बात थी, सर मैं जी गरीब आदमी, सर आप बोलते दान करना चाहिए, निष्काम दान, मैं गरीब आदमी मैं कैसे दान करूंगा। मैंने उसको कहा कैन यू अफोर्ड 10 रुपया, कैन यू अफोर्ड? बोला यस आई कैन अफोर्ड 10 रुपीज। ऐसे बाई 2 केला, 2 बनाना खरीदो, किसी गरीब को दान करो, किसको, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको अनजान लोग को जान करो, एंड उसको प्रणाम भी करो, बिकॉज गॉड इज इन हिम आल्सो, सेम गॉड। मैंने कहा तेरी ब्लेसिंग 10 टाइम्स पावरफुल हो जाएगी। या अब यही लेसन, गुरुजी का लेसन, इसी में लिंक कराता हूं आपको। वी मस्ट हेल्प करो, नॉट ओनली निष्काम विदाउट एवरीथिंग, अननोन को, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिवाइन। पता नहीं, आई वांट यू ऑल टू बी हैव अ टच ऑफ मिस्टिसिज्म। एक गुरुजी ने मुझे कहा है, ये टच ऑफ मिस्टिसिज्म, वो आप देखोगे, आप मौज मजे में रहोगे, आप मौज ही मौज, मजे ही मजे में रहोगे। बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव गॉट, आई वांटेड टू टेल यू वन और टिप, गुरुजी का हैप्पीनेस टिप आपको देना चाहता हूं मैं। अच्छा, क्या हुआ गुरुजी का, देयर वाज अ यंग कपल गोइंग टू गुरुजी, जाते थे, बड़े प्यार से जाते थे, गुरुजी से अटैच थे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, अब टाइम नहीं ना पता क्या, बहुत एक से बढ़कर एक चीज इंस्पायरिंग गुरुजी की लीला है। वो one day they brought their father, a reluctant father, unwilling, he didn't want to go to Guruji, unwilling, reluctant father। अब वो बैठे हैं, प्रसाद भी खाया, उसने भी खाया, अब उन्हें बिल्कुल चरण छुए, गुरुजी के प्रणाम बड़ा प्यार से, और फादर दूर से नमस्ते, निकलने के टाइम बोला आओ इधर अंकल, अंकल आओ। तो रिलक्टेंट पर्सन, अंकल आओ इधर। तो क्या हाल है अंकल, क्या हाल है? बोला क्या गुरुजी, हम बुढ़ापा काट रहे हैं, ऐसे दिन निकाल रहे हैं, देखो जी घुटने मेरे चलते नहीं है, घुटने में दर्द है, तकलीफ है, ऐसे बुढ़ापा है, गुरुजी निकाल रहे हैं बुढ़ापा। He was a little bit what we call it a cynic answer, cynic answer। बोला आजा बैठ कर। गुरुजी ने क्या किया, उसके ऐसे घुटने पर हाथ, अपने घुटने पर हाथ, उसके घुटने पर हाथ, अपने घुटने पर हाथ। Maybe this was for about a minute or so। उसके चेहरे में ऐसा है, गुरुजी खत्म हो, दर्द खत्म हो गया, आप महान हो गुरुजी, बहुत दर्द खत्म हो गया जी, धन्य हो गुरुजी। वो स्टार्टेड प्रेजिंग गुरुजी, हाँ जी मैं भी आऊंगा मंदिर, मैं आऊंगा गुरुजी, धन्य हो, बहुत शुक्रिया। Then he thanked his children, you have brought me to गुरुजी। चेहरा बदल गया उसका, हाँ जी आऊंगा, धन्य धन्य करके निकल गया। Within 2-3 minutes बोला चल ऊपर आप कमरे में, डॉक्टर को अब मेरी मसाज करो, आप इसी घुटने में मेरी मसाज करो। लोगों का दर्द लेते थे। तो मतलब अगेन वी शुड लर्न फ्रॉम गुरुजी's लाइफ, वी शुड अडॉप्ट, हम अपनी जिंदगी ये करें, ग्रेट ह्यूमनिस्ट। और कहते हैं ना वो जो ऑफकोर्स वो 4 आदमी खाना खाते थे, दैट शोज भाईचारा, मेनी थिंग्स आर देयर। और कहते हैं वी शुड नॉट लीव एनी प्रसाद, व्हिच इज आवर इनिशियल इंडियन कल्चर। कहते हैं ना भंडारा में भी कहते खाओ मन भर खाओ आप, पर छोड़ो नहीं 3 बार, दिस इज ट्रेडिशन। एक बार क्या हुआ, द फेमस शरद पवार, he was cabinet minister for agriculture, very famous, he had a very bad facial paralysis। वो भी आया गुरुजी के पास, मैंने कोई ऐसा नहीं जो मैंने नहीं देखा गुरुजी के दरबार में। अडवाणी जी रेगुलर आते थे। एक दिन क्या हुआ, बाय द वे मैं बताता हूँ, बिफोर शरद पवार और एक कपूर अंकल, जो लेट कपूर अंकल ने कहा कि एक बार प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी जी वाज असिस्टेंट टू अडवाणी जी, उसके साथ आए, वो ऐसा झोला लेकर पूरा वर्कर टाइप आए, जो दाढ़ी थी उनकी। कहते गुरुजी ने कहा, जनरल कपूर साहब ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि ये बनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, ही वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी। बोला पीएम बनना चाहता, मैं नहीं बनेगा पीएम, पीएम वो बनेगा, अननोन पर्सन, नोबडी न्यू हिम आल्सो, जिसके साथ बैठा हुआ है, यही इसी का चांस है पीएम का। जनरल कपूर साहब ने कहा मुझे, बिकॉज़ गुरुजी's विजन, मिरेकल्स, व्हाटएवर इट इज।
कमिंग बैक टू शरद पवार जी, आज ही गुरु शरद पवार ऐसा किया, पिए बैठा हुआ साथ किया, चलो जी चाय प्रसाद ले लो, चाय प्रसाद ले ली, और नीचे चाय टेस्टी नहीं लगी होगी, उसने पिए को दिया, फेंको इसको, ऐसा पता नहीं डाल दी। अच्छा गया, वापस चला गया, कहता बड़ा अच्छा हैप्पी हुआ जी, गुरुजी थैंक्स अ लॉट, मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, आधा ठीक हुआ। फिर वो लिखता है साधु सर आधा ही ठीक हो रहा है, आधा नहीं ठीक हुआ है। Then again he met, he said तूने आधी चाय पी, गुरुजी ने कहा उसको, तेरा आधा ही कल्याण हो गया। तो कितना है, these are our basically I would say Guruji will propound fundamental truths of life, of spirituality. तो अब मेरी humble submission is all satsang, let us evolve as a better human being. जैसे मैंने गुरुजी आपके साथ आपको चाहिए डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी, and Guruji will give you all the material bliss also. आपकी लाइफ जर्नी भी स्मूथ करेगा, आपके नीड्स भी फुलफिल करेगा, और आपको वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डियर टू मी, यू विल इवॉल्व ऑन अ हायर प्लेन, आप साधना भी आपकी हायर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि लेट ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन, ये गुरु जी की पहली हमारी साधना यही होगी। लेट ह्यूमिलिटी, नम्रता, लव एंड कंपैशन शुड बी योर नेचर, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। नॉट कि आप आज हम्बल पूजा करनी, गुरु जी का नाम लेना, आज मैं हम्बल बनूंगा फिर मैं अगेन क्रोधी हो जाऊंगा, ना, आपका स्वभाव ही होना चाहिए। ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन, ये आपका नेचर होना चाहिए। इससे क्या होगा, ऊपर वाले की 100% चाबी खुलेगी, आपको अनुग्रह मिल जाएगा। बल्कि एक टाइम हमारे पास अभी तो घंटा हो गया शायद, एक विद्वान ने कहा मुझे, there was a great humble vidwan, great scholar as well as साधक, बेचारा बुढ़ा बैठा है, कश्मीर की बात है, बुढ़ा बैठा है, बुढ़ा बुढ़ी सो रहे हैं, विद्वान उनके घर में आ गया चोर आ गया। विद्वान था बेचारा, बाकी था नहीं उसके पास, मटेरियल वेल्थ वाज जीरो, और किताबें देख रहा है कि कुछ पैसा मिले, कुछ सोना चांदी मिले, ढूंढ रहा है, कुछ मिला नहीं है। इस विद्वान की आंखें खुल गई, देख रहा है चोर काम कर रहा है, वो बोला अरे बेटा, ओ हो, तेरी उंगलियां भी थक गई, हाथ भी थक गए, ओ हो बेटा, कोई बात नहीं, मेरे जेब में 1 रुपया कुछ है बेटा, मैं दूंगा आपको। जैसे चोर उसके चरणों पर गिर गया, बोला सब मुझे पैसा चाह ढूंढ रहा था, मगर मुझे भगवान मिल गया, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। दैट इज द पावर ऑफ कंपैशन। एंड सेकंडली, गुरुजी विल एम्पावर यू, ही विल टेल यू क्या। सो इसलिए ऐसे बताता हूं मैं, बल्कि टोटल डिफरेंट बोलते अपना घर का काम करो, बाद में मेरे पास आ जाओ, नो कॉन्फ्लिक्ट, पतिदेव को खुश करो, बच्चों को खुश करो, घर के काम करो, फिर आओ मेरे पास। एंड सेकंडली, जब आप गुरु जी को मानोगे, यू बिलीव इन गॉड, अरे यू शुड बी 100% पॉजिटिव। सो इसलिए मैं कहता हूं, हैव 100% फेथ इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है, आपको किसी पर विश्वास नहीं होगा, बिकॉज गॉड इज विद इन यू। आप शिव के अंश हो, 100% आप अपने पर विश्वास रखो। सेकंडली, आई विल से लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करो। गुरुजी विल से दैट यू शुड बी बेटर ड्रेस, अच्छे पहनो, अच्छा खाओ, बिकॉज यू लव योर डिवाइन इज विद इन यू। सो ये आपकी बॉडी है, मेंटेन इज अ टेम्पल, लिव नाइसली, लिव होलिस्टिकली, नाइसली आई मीन होलिस्टिकली, लिव होलिस्टिकली, अपने आप से प्यार करो। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली लिसन, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कल क्या होगा, कल सब कुछ होगा पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हमेशा मैं कहता हूं कि काइंडली लिसन टू मी, नेक्स्ट मोमेंट, टुमारो और इन फ्यूचर, अरे गुरुजी पर छोड़ दो ना ये, प्लीज। 100% आई टेल यू, एवरीथिंग विल बिकम गुड। वही मैंने पहले भी कहा कि हम मूर्ख जो काम बिगाड़े, रामो काज बनाए रे, हमें पता भी नहीं क्या चाहिए। और आई विल टेल यू, आपका हैप्पीनेस भी आ जाएगी, वरी भी खत्म हो जाएगी, अरे कल अच्छा ही होगा ना। इवन इफ देयर इज अ लिटिल समस्या, देखिए समस्या के बगैर कोई संसार नहीं चलता है। दैट आल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ बाय गुरुजी। शिव आपकी नैया पार करेगा, समस्या भी पार करेगा। प्लीज बिलीव मी, लीव एवरीथिंग टू गुरुजी। आप खड़ी ऐश करो, मजे में रहो, बिकॉज प्लीज रिमेंबर, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज ऑलवेज अटैक ए वीक माइंड, वीक पर्सन, उनका शिकार ही वीक पर्सन है।
बट वन यू हैव फेथ इन गुरु, शिव आपके अंदर है तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। अरे क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट करने वाला, क्या होगा, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप मंत्र जाप करो एंड ट्राई टू डू मेडिटेशन, बल्कि वी नीड अ मच बिगर सेशन फॉर दैट, बट सिंपल थिंग कैन ट्राई। जस्ट गुरु जी इज योर गाइड, और आप ऐसे जय गुरु जी करो, मंत्र जाप करो, आंख अगर साइलेंटली बैठो, सिंपल टेक लॉन्ग ब्रेथ सो द चक्रास आर ओपन, देन काइंडली लिसन, यू से एनीथिंग। अगर आप मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप से जय गुरु जी बोला, जय गुरु जी बोल के कामली जय गुरु जी, देन hide the gap, jai guruji, stop, then again jai guruji. I'll say jai guruji anand, you will get the feeling of anand, again jai guruji. इससे क्या होगा, 100% आई विल गारंटी यू, आपका, मुझे बहुत हमारे मित्र लोग बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, सब मेडिटेशन में मन कहां से कहां तक भाग जाता है। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन, सर मेडिटेशन करेंगे मन कहां से कहां तक भाग जाएगा, पता नहीं सर कैसे चलता है, हम वी कैन नॉट कंसंट्रेट। बट मेरा एक हम्बल सजेशन है, सिंपल, अगर मंत्र जाप करना नहीं तो जय गुरु जी भी बोलिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब जय गुरु जी के बाद जो गैप है उस पर फोकस कीजिए। अब मैं इस गैप को बाद में बढ़ जाती है, इसको मैं आनंद का बोलता हूं, जय गुरु जी, देन फीलिंग ऑफ आनंद, जय गुरु जी, मन से ही 100% आपका मेडिटेशन में ध्यान लगेगा और आनंद का लेसन है। देयर इज अ फर्दर थिंग्स, वी नीड अ बिगर सेशन फॉर दैट। आई थिंक आपने कृपा की मेरा सत्संग सुना, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आपका आशीर्वाद चाहिए। जय गुरु जी, लॉर्ड शिवा ब्लेस यू। जय गुरु जी।